I think we are good to start. Am I audible, Sunil? Yes, All right. Good evening, everyone, and welcome to today's Ekatva webinar session. This is Ravi Mudliar from Ekatva, and today's topic is GST and income tax implications in the real estate redevelopment project. It is our pleasure to introduce CA Sunil Kumar Patel, who is qualified chartered accountant with bachelor's degree in accounting and finance. He has been associated with MoneyPlus Consultancy Services for over 10 years, gaining deep hands-on experience in GST, income tax, and statutory audit. His core areas of expertise include builder project planning, GST and income tax compliance for real estate projects spanning JDA structures, TDR, FSI transaction, redevelopment schemes, and allied regulatory matters. Beyond compliance, he has substantial experience in statutory audit under the Companies Act and applicable accounting standards. He actively represents clients in GST and income tax litigation, including submission before the adjudicating authority of GST and income tax. With a strong blend of practical depth and legal insight, CA Sunil Kumar brings real world, field tested perspective to today's session. Please join me in welcoming CA Sunil Kumar. Over to you, Sunil Bhai. thank you, Ravi. Very good evening to every viewer. So, today we will try to understand GST concept in redevelopment project. In next 1 hour, we will learn about various agenda like background and structure of redevelopment, GST applicability on existing member as well as new member in redevelopment project. What is the time of supply, when GST payment is triggered, what is the 80-20 rule, and input tax credit in redevelopment project, as well as CM. And for income tax point of view, we will learn about income tax applicability to the developer as well as member. So now we will start our first step. What basic understanding about what is the redevelopment project. So in redevelopment project, uh, key party involved in redevelopment project is three. First one is housing society, means who is provide his flat existing land to the developer for the development purpose. Second one is developer, which is execute development agreement with society and execute construction and build a new building and provide it to the existing member. What is the benefit to the existing member and redeveloper? Because here existing member provide his flat to the developer and developer build a new building and provide it to the existing member, as well as developer when develop the building. Because developer when develop the building, suppose we assume that existing society have 30 member and have 30 units, but when new plan passing is done by the developer, then he will construct more unit. Because if the developer construct 30 units, then existing member get his 30 unit. But what is the benefit to the developer? So developer construct more unit. Because when developer construct more unit, because the marginal unit, like developer construct 10 plus unit or 20 plus unit, then he will sell the same unit to the new member. So developer earn money from only from the new member only, because existing member will not provide him any monetary uh, support. And because of that, redevelopment agreement, redevelopment project, developer will execute redevelopment agreement and construct more unit, utilize more FSI as well as TDR. So developer get maximum benefit from the existing uh, uh, land. So we will understand what is the GST implication on redevelopment project. What is the GST rate applicable to the existing member, new member, and what is the time of supply to the
when supply to the existing member. So first of all we understand कि भाई जीएसटी एग्जिस्टिंग मेंबर को कब लगेगा. सो जब भी एग्जिस्टिंग रीडेवलपर एग्जिस्टिंग मेंबर को सप्लाई करेगा उस समय कैसा होगा कि एग्जिस्टिंग मेंबर जो होगा उसको फ्लैट मिलेगा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट पूरा हो जाएगा, व्यू आ जाएगा बिल्डिंग का, तो एग्जिस्टिंग मेंबर को मिलेगा उसका फ्लैट्स. बट इन दिस केस जब भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेगा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए नहीं चलता है. सो डेवलपमेंट टेक्स टाइम more than 1 year. So development takes time. Sometime it will take 2 year, 3 year. So what is the time of supply? So time of supply is very important criteria for the purpose of GST payment. And so time of supply in this case is due permission, because कि जो डेवलपर है उसको इनिशियली जो कंस्ट्रक्शन करके जो मेंबर को देगा उस समय उसके पास जो होगा, जो भी यूनिट अभी बना हुआ नहीं है, बट कैसा है कि जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा उस समय उसकी जो भी वैल्यू आएगी उस समय की, तो उस वैल्यू पर डेवलपर खुद जीएसटी भरेगा और वो जीएसटी की अमाउंट डेवलपर एग्जिस्टिंग मेंबर से नहीं लेगा. सो जीएसटी रेट जो होगा इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जीएसटी रेट. अभी कंस्ट्रक्शन सर्विस में जीएसटी रेट डिफाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया है. फर्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन वेदर प्रोजेक्ट इट रियल एस्टेट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. So what is the residential real estate project? So residential real estate project means in which commercial area is less than or equal to 15% of total carpet area. So in this case, if commercial area is less than or equal to 15%, in this case, the project is residential real estate project. And in residential real estate project, the GST rate applicable to affordable housing is 1% or non-affordable, and so is 5%. So what is the meaning of affordable housing? So affordable housing means if area of units, means carpet area of units is less than and equal to 9 square meter in non-metro city and 60 square meter in metro city. So in this case, if area of affordable units is less than and equal to 60 square meter in metro city and 90 square meter in non-metro city, plus stamp duty value is less than is equal to 45 lakh rupees. In this case, housing is affordable housing. So in affordable housing is the GST rate 1%, and non-affordable housing means कि area of carpet area of unit is more than 60 square meter and 90 square meter for non-metro city or 60 square meter for metro city. So in this case, GST rate applicable to that unit is 5%, and for the soap portion, GST rate is 5%. बिकॉज सोप में कंपल्सरी 5% लगेगा. सोप के लिए अपने को कभी भी डिसाइड करने को नहीं आएगा कि इसमें 1% आएगा या 5% आएगा जीएसटी. सोप के लिए हमेशा 5% जीएसटी ही आएगा अंडर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. एंड फॉर द प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन जिसमें कॉमर्शियल एरिया मोर देन 15% हो, less than 50% हो, so residential real estate, but commercial area is greater than 15%. In this case, that project is real estate project. In this case, affordable and non-affordable criteria is same for residential unit. Residential unit के लिए GST continue रहेगा 1% and 5%. But for soap portion, because soap portion means commercial portion is greater than 15%. So in this case, soap portion GST rate applicable is 12%. 12% GST rate for soap, but we can take ITC in this case. What is the value of supply for existing member? Value of supply for existing member is price of similar apartment to the independent buyer nearest to the date of TR
डी ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जब ट्रांसफर करेंगे उसके नियरेस्ट डेट पर जो अपार्टमेंट की वैल्यू होगी इंडिपेंडेंट बायर को जो सेल करेंगे सेम वैल्यू हम लेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए सप्लाई की वैल्यू डिफाइन करने के लिए और जीएसटी पे होगा एट द टाइम ऑफ व्हेन वी रिसीव व्यू परमिशन। और अगर आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है सो यू कैन टेक लाइक काइंड ऑफ वैल्यू, जैसे कि आपका जो अपार्टमेंट है सेम अपार्टमेंट सेम एरिया, सेम एरिया मींस अगर सेम एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप सेम एरिया जैसे कि जैसे अहमदाबाद एरिया है तो आप सेम एरिया अहमदाबाद जैसा ही कोई दूसरा एरिया भी उसमें ले सकते हैं और वहां का आप वैल्यू लेकर आप ये डिफाइन कर सकते हैं। बट इन 99% केस आपके पास जो होगा ये वैल्यू अवेलेबल ही होगी सिमिलर अपार्टमेंट की। तो ये था हमारा कि जीएसटी ऑन सेल्स एंड सर्विस टू एग्जिस्टिंग मेंबर। अब हम जाएंगे जीएसटी फॉर न्यू मेंबर बिकॉज एग्जिस्टिंग मेंबर का जीएसटी पेड बाय डेवलपर एंड न्यू मेंबर जीएसटी पेड बाय न्यू मेंबर ओनली बिकॉज जीएसटी पेड बाय डेवलपर बट recover from the new member in existing member GST paid by developer but developer cannot take the GST portion from the existing member. So in new member GST applicable only if booking accepted before the view. If after view you will receive token amount or booking, then in that case for new member GST is not applicable. So GST applicable only if booking accepted before the view and first occupancy certificate. If part payment received, here one more criteria, if part payment received from BU before BU and part payment received after BU, in this case half of कि आफ्टर BU वाला जो है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा और बिफोर BU वाला जो है उस पे जीएसटी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ऐसा है कि जो भी अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो जीएसटी अप्लीकेबल तभी होगा जब आप पार्ट पेमेंट या टोकन अमाउंट चाहे वो 1 रुपया भी हो अगर आप वो व्यू के पहले अगर ले लेते हो तो उस केस में जितना भी पेमेंट आएगा आफ्टर व्यू बिफोर व्यू सब पे जीएसटी अप्लीकेबल होगा। बट इन केस वेयर वी रिसीव टोकन अमाउंट या बुकिंग आफ्टर व्यू in that case GST applicable only when GST will not applicable if we receive payment after view. In that case GST not applicable and GST rate is the same for new member which is applicable for existing member 1%, 5% and the affordable or non-affordable criteria is same in both cases existing member as well as new member. So now we will move time of supply. Time of supply means for existing member time of supply we will discuss key time of supply for existing member when we receive view permission at and that time we have to pay GST on existing member supply and supply value is determined by कि भाई same apartment की value near to TDR date similar apartment value and in case of new member time of supply is bifurcated in a different area like when we receive advance on advance means ki when we receive token amount at that time we have to pay GST on advance whatever we have received like 50,000 rupees we have received as a advance at that time we have to pay 1% 5% whatever rate is applicable on the unit we have to pay 1% 5% GST on 50% 50,000 value whatever we have received in token amount. When we receive assume that we our unit amount value is 50 lakh rupees and we receive token amount 10 lakh rupees means ki we have received more than 10% amount in token. So in that case as per RERA we have to execute agreement to sell deed agreement to sell we have to execute because we have received more than 10% value. So in this case we have to execute agreement to sell
and we have to pay GST on received amount, 1%, 5%, whatever rate is applicable. And in the real estate project, project is continue for more than 1 year. So here is revenue is booked as per two method. One is project completion method and second one is percentage completion method. In project completion method, we have to book revenue when sale deed is executed by the developer. But in percentage completion method, developer have to decide how many percent work is completed by the developer in the end of financial year. Suppose in the first year, developer developed the started development of project and develop around incur 20% amount as a development cost. So in this case, 20% amount is only expended by the developer. So here one is the guidance note from ICAI, in which ICAI said that for completion method, percentage completion method only, for in which ICAI said that if 25% or less, मीन्स 25% तक का अगर आपका कोस्ट इनकर्ड नहीं हुआ है तो आपको अभी रेवेन्यू बुक करने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन our construction is more than 25%, so we have to, if we follow percentage completion method, so we have to book income on percentage completion method. Suppose we have 15 units and receive booking of 20 units, and we have completed almost 50% of project. In this case, we have to raise invoice on unit 50% value of unit value. Suppose 50 lakh rupees one unit value, and we have completed 50% of construction portion. So in this case, 50 lakh into 15% or 50%, so is equal to 25 lakh rupees you have to book as a sale as per percentage completion method. If you follow percentage completion method, in this case you have to raise invoice for 25 lakh rupees at the end of financial year. This is for percentage completion method. But if you follow project completion method, in this case, when you receive BU, means ki your construction will continue for 3 years. First year you have आपको कोई रेवेन्यू बुक करने को नहीं आएगा. सेकेंड ईयर भी आपको कोई रेवेन्यू बुक करने को नहीं आएगा. बट इन थर्ड ईयर you have to book 100% revenue when you receive your BU permission. So it is beneficial if we go for percentage completion method, because in percentage completion method we have book revenue in 3 across year, first year, second year, third year, across the project year. 4 year है तो हम चारों साल में रेवेन्यू बुक करते हैं थोड़ा थोड़ा. इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड हमें थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ही सारा सेल्स बताना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी तीसरे और चौथे साल में बहुत ज्यादा आ जाएगी. तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो परसेंटेज कंप्लीशन के लिए हमें एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर हमें चेक करना पड़ेगा परसेंटेज कंप्लीशन के लिए. बट फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड हम पे करेंगे, हम इनकम बुक करेंगे जब हमारा व्यू परमिशन आएगा. बट एडवांस पे हमें जीएसटी पे करते रहना है जब जब हमें एडवांस मिलेगा. So for the construction service, earlier of date of invoice or date of payment. So construction service के लिए हमें जीएसटी कब पेमेंट करना है? जब भी अगर हम इनवॉइस इश्यू कर देवे या हमें पेमेंट रिसीव हो जाए. हमारे केस में जब हमें एडवांस अमाउंट मिलेगा तो हमें जीएसटी पे करना है. या तो अभी बुकिंग हो गई है 50,000 रुपीज से, बट हमारा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से 15 लाख का बुक इनवॉइस रेस करने को आ रहा है, तो हमें फिर इनवॉइस वैल्यू पे जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड करते हैं तो. और इनवॉइस 30 डेज के अंदर रेज होना चाहिए. तो टाइम ऑफ सप्लाई में
इतना ही है, यानी व्यू परमिशन ये हमारा मेन क्राइटेरिया रहेगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। और परसेंटेज कंप्लीशन के लिए तो हमें परसेंटेज वाइज ही जाना पड़ेगा। और जीएसटी पेबल हमारा एडवांस और इनवॉइस वैल्यू जो भी हमारा ज़्यादा होगा उस पर हमें एडवांस पे करना रहेगा टाइम टू टाइम। अब इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 80-20 rule is very important, because in 80-20 rule promoter means के developer need to purchase 80% of inputs plus input services from the registered dealer, and 20% the developer can purchase from the unregistered person. But if developer shortfall in this case means के developer purchase only 70% value from registered dealer and 30% from unregistered dealer. In this case, developer need to pay 18% GST on RCM basis on shortfall amount. Means suppose project construction value is 100 crore rupees and developer purchase 70 rupees from registered dealer and 30 rupees from unregistered dealer. In this case, on 10 rupees, developer need to pay 18% GST on RCM basis. So 1.8 rupees need to pay by developer in RCM. Here RCM rate is fixed 18%. So like sand have GST rate 5%, TMT have 18%, and like 5%, 12%, 18%, 28%, various GST rate is there. But if shortfall is there, in 80-20 rule, you have to pay GST on standard rate 18% only. Second one is कि कुछ ऐसे गुड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जीएसटी में, लाइक सीमेंट, कैपिटल गुड्स, जो अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हो तो आपको 18% जीएसटी पे करना है सेम मंथ में, जिस मंथ में आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करना है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, अगर आप 80-20 रूल में शॉर्टफॉल कर रहे हो तो उसमें आपको कैलकुलेशन 80-20 का कब करने का है? 80-20 का कैलकुलेशन आपको ईयर एंड पे करने का है। ईयर एंड पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे 80-20 का, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा आपका वो आपको पे करना है फर्स्ट क्वार्टर एंड पे। फाइनेंशियल ईयर जो आपका एंड हुआ मींस कि आपका 25-26 का एंड हुआ मार्च 26 में, और उसका फर्स्ट क्वार्टर फॉलोइंग क्वार्टर मींस कि आपको 30 जून 26 तक का जो भी शॉर्टफॉल आपका आएगा 80-20 रूल में, आपको वो पे करना पड़ेगा। 80-20 रूल के लिए है ये। और 80-20 रूल जब आप कंप्यूट करेंगे तो उसमें कुछ चीजें डिपार्टमेंट ने दी हुई है, लाइक डेवलपमेंट प्राइस, टीडीआर, एफएसआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम, हाई स्पीड डीजल पेट्रोल, ये सभी को आपको इंक्लूड नहीं करना है 80-20 रूल के लिए। आपने को 80-20 रूल के लिए ओनली टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इसमें कंसीडर करना है। और आपको 80-20 रूल जो है वो आपको प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना है। If developer work on more than one project, then developer need to maintain separate books of accounts each project wise, and 80-20 rule compliance need to be done on project wise basis, not in some of like 2/3 project. So this need to be अब अपने को ये देखना पड़े हर प्रोजेक्ट वाइज। So the next step is we need to understand ITC and reverse charge mechanism in redevelopment project. When RCM applicable, and what is ITC rule, when we can claim ITC, when we have to reverse the ITC, we will understand in next slide. So input tax credit in redevelopment project, availability depend on GST scheme choose by the developer, but स्कीम अभी जो 1/4/2019 से जो एक स्कीम आई हुई है, अभी सारे डेवलपर को न्यू स्कीम ही फॉलो करना है। और न्यू स्कीम में आपको
डिफाइन करना है पहले कि आपका प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है या रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है। बिकॉज अगर आपका प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, इन दिस केस नो आईटीसी इज अवेलेबल टू द डेवलपर। Means developer cannot claim ITC on cement, steel, ties, bricks, RMC, labor, architect, and whatever input and input services procured by the developer. But ITC is not available on residential real estate project. So ITC need to reverse in residential real estate project. And what is the benefit? Benefit is like कि डेवलपर को 80-20 रूल एक ध्यान रखना है। 18% प्रोक्योरमेंट रजिस्टर से करने के बाद, सारे आईटीसी रिवर्स करने के बाद, जो भी डेवलपर का आउटपुट सप्लाई होगा एग्जिस्टिंग मेंबर और न्यू मेंबर को, उस पे 1%, 5% जीएसटी पे करके उनको सिर्फ रिटर्न भर देना है। इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्किंग या आईटीसी कितना लेना है, कितना रिवर्स करना है, ये नहीं। इसमें सारी आईटीसी आपको रिवर्स करने के बाद आपको जो भी आपका सेल्स रहेगा बिफोर बीयू का, उसके ऊपर आपको 1 और 5% जीएसटी भर देना है रेसिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में। एंड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो भी रेसिडेंशियल पोर्शन है, अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल, उसमें आपको 1-5% जीएसटी पे करना है। But for the commercial portion, you have to take ITC on construction material contracts and जो भी आप प्रोफेशनल लीगल सर्विसेज आप रिसीव करोगे, सो उसमें आपको आईटीसी आपको पूरा क्लेम कर लेना है। बट यू हैव टू रिवर्स आईटीसी ऑन रेसिडेंशियल पार्ट। सो इन दिस केस यू हैव टू वर्क आउट कि टोटल आईटीसी में से आप कॉमर्शियल पोर्शन के आईटीसी कितना ले रहे हैं, रेसिडेंशियल पोर्शन के आईटीसी आपको कितना रिवर्स करनी है। ये जो आईटीसी कैलकुलेशन रिवर्स और अवेलेबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा, वो आपको कारपेट एरिया मींस कि कॉमर्शियल एरिया का जो भी कारपेट एरिया होगा, उसको डिवाइड करेंगे टोटल कारपेट एरिया से इनटू टोटल आईटीसी। सो जो भी आईटीसी आएगा कॉमर्शियल एरिया के लिए, वो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट जो आईटीसी रेसिडेंशियल पोर्शन करेगा, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 12% आपको जीएसटी कॉमर्शियल पोर्शन में बना रहेगा, बट आपके लिए आईटीसी अवेलेबल रहेगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे अगर हम बात करें, तो काफी सारी ऐसी सर्विसेज है जिसपे डेवलपर को आरसीएम पेमेंट करना रहेगा। लाइक जीटीए सर्विस, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डेवलपर अवेल करेगा, उस पे आरसीएम लगेगा 5%। और इफ ट्रांस जीटीए जो है वो अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करता है जीएसटी, इन दिस केस डेवलपर नो नीड टू पे जीएसटी इन दैट केस। सो जीटीए सर्विस में आरसीएम अप्लीकेबल होगा 5% अगर जीटीए पे नहीं कर रहा है तो। लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, जो भी लीगल सर्विसेज एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, उसमें जीएसटी आरसीएम बेसिस पे लगेगा 18%। एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, रॉयल्टी सर्विस, रॉयल्टी, इन पे भी जीएसटी आरसीएम बेसिस पे लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, आर्किटेक्ट आपने आउटसाइड इंडिया से हायर किया, इन दिस केस जो भी आप प्रोफेशनल फी पे करोगे आर्किटेक्ट को आउटसाइड इंडिया, उस पर आपको आरसीएम भरना पड़ेगा 18%। एंड फॉर द सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी परचेज होगा, उस पे आपको आरसीएम में 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। बट ये जो जीएसटी है, ये अपना जो शॉर्टफॉल का जीएसटी 80-20 का जो शॉर्टफॉल आएगा, वो जीएसटी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो भी आप सीमेंट, कैपिटल गुड्स अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस कर रहे हैं, तो आपको सेम मंथ में पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 80-20 में अगर आपने 18% 80% से कम इनपुट है या सर्विसेज है, वो आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया, तो जो भी शॉर्टफॉल में आप जीएसटी भरोगे, वो आपका अनरजिस्टर्ड परचेस सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में आएगा। अगर आप एडिशनल टीडीआर या एफएसआई आप बाई कर रहे हो, गवर्नमेंट या म्युनिसिपल से आपने एफएसआई, एडिशनल एफएसआई बाई की, तो इन दिस केस आपको जो भी आरसीएम में बनना, वो एफएसआई पे जो भी बनना पड़ेगा, वो आरसीएम में बनना पड़ेगा। फॉर कॉमर्शियल पोर्शन एफएसआई में क्या होता है कि फॉर कॉमर्शियल पोर्शन
जो भी रहेगा आपका रेट वो 18% फिक्स है। बट जो FSI का पोर्शन रहेगा आपका, जो भी अगर आपका बुकिंग आ गई है तो बुकिंग जो आपका रेगुलर हो गया है आफ्टर व्यू, जो भी अनबुक यूनिट रहेगा, 100 यूनिट थे उसमें से 70 यूनिट बुक हो गए अपने व्यू तक के, तो जो 30 यूनिट का जो कारपेट एरिया रहेगा, जो भी अनबुक यूनिट जो व्यू पर रहेगा, उसके ऊपर ही आपको FSI का पेमेंट करना है 18% RCM में। सो आपका जो भी कारपेट एरिया रहेगा, तो इसमें फॉर्मूला जो होगा वो टोटल कारपेट एरिया जो रहेगा उसमें अनबुक यूनिट, जो व्यू के बाद का जो अनबुक यूनिट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे FSI अमाउंट से और डिवाइड करेंगे टोटल कारपेट एरिया से। जो भी आंसर आएगा उस पे आपको 18% GST भरना पड़ेगा FSI पे या TDR पे, जो भी आप एडिशनल परचेस कर रहे हो उस पे। एंड RCM ऑन रेंट एंड रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस। सो यहाँ पर जो भी ट्रांजिट रेंट अगर जेन्युइन है, मीन्स कि डेवलपर ऑफिस रेंट पे ले रहा है, तो इन दैट केस जो भी रेंट पे करेगा डेवलपर, तो उस पे RCM 18% लगेगा। बिकॉज डेवलपर जो भी होगा उसका टर्नओवर होगा और वो रजिस्टर ही होगा GST में, तो RCM अगर RCM उस पे लगेगा। बट इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब हम एग्जिस्टिंग मेंबर के पास से जो भी उनके एग्जिस्टिंग फ्लैट हम लेंगे डेवलप करने के लिए, सो जो भी 2-3 साल का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें वो डेवलपमेंट होगा, तो वो 2-3 साल के पीरियड के लिए हम जो पे करेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर को, सो वो जो रेंट रहेगा वो एक तरह से रेंट ना होके वो एक कंपनसेशन के तौर पर रहेगा। तो ये एक्चुअल रेंट नहीं हुआ, ये है इन द नेचर ऑफ रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन एंड फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर डेवलपमेंट राइट्स। मीन्स कि ये जो भी रेंट एग्जिस्टिंग जो भी आपको मिला, जो लैंड मिली आपको डेवलपमेंट के लिए, प्लस जो भी आपने गिफ्ट मनी दी है एग्जिस्टिंग मेंबर को, जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं, जो भी आपने एडिशनल कंपेंसेशन दिए हुए हैं, मींस वन टाइम जो ट्रांजिट के लिए आपने दिए, वो सारा एक पार्ट बन के वो TDR की वैल्यू हो जाएगी। और TDR की वैल्यू जो होगी उस पे अपने को RCM में GST पे करने को आएगा ही। सो वो RCM में GST पे, क्योंकि यहाँ पे TDR की वैल्यू डिफाइन एक तो रेंट प्लस गिफ्ट मनी प्लस जो आपको एग्जिस्टिंग जो भी मिला सोसाइटी के पास से, वो आपके TDR की वैल्यू है। बट हमें TDR की वैल्यू जो डिफाइन करनी है वो है एग्जिस्टिंग मेंबर को जो आप फ्लैट दे रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो वो जो फ्लैट है वो आपका एक तरह से TDR हुआ, जिसपे डेवलपर को 1 और 5% अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल चेक करके जो भी 1 और 5% के तौर पे जो GST बनने को आएगा, वो TDR पे ही आप एक तरह से GST भर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो दूसरे तरह से हो रहा है कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर के पास से एक तो GST नहीं ले रहे हैं, प्लस न्यू मेंबर अगर BU के पहले का है तो उसके पास से GST आप लेके डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। बट इन एग्जिस्टिंग मेंबर आप उनके पास से GST चार्ज नहीं कर रहे हैं। उनका जो भी फ्लैट की वैल्यू जो भी मार्केट वैल्यू आ रही है, आप उसको उसके ऊपर जो GST पे कर रहे हैं वो आप डेवलपर अपने जेब से पे कर रहे हैं। सो वो TDR, वो जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू TDR होगा, जिस पर डेवलपर 1 और 5% GST ऑलरेडी पे कर रहा है। तो जो भी ट्रांजिशनल रेंट होगा, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस हो गए, जो भी गिफ्ट मनी होगी, वो सब पे अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो डेवलपर है वो पेमेंट कर ही रहा है। ऐसा ही अभी एक ARR जजमेंट भी है 25 का, शारदा वास्तु निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें भी सेम एनालिसिस किया गया है कि जो भी वैल्यू TDR की है वो मेंबर जो भी प्रोवाइड कर रहा है डेवलपर को, उसके अगेंस्ट में डेवलपर जो भी मेंबर को प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम चल रहा है। ओल्ड फ्लैट लेके न्यू फ्लैट दिया हुआ है, बट ओल्ड फ्लैट लेके जो न्यू फ्लैट पे जो GST भरने को आ रहा है वो डेवलपर भर रहा है GST। सो
इन दिस केस जो भी जीएसटी डेवलपर पे कर रहा है वो एक तरह से टीडीआर के ऊपर ही जीएसटी भर रहा है। सो जो भी आरसीएम रेंट एंड रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस पे होगा उस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से कंपनसेशन फॉर्म में है, वो एक्चुअल रेंट पेमेंट नहीं हो रहा है, वो एक तरह से डेवलपर है कंपनसेटरी फॉर्म में वो दे रहा है सामने एग्जिस्टिंग मेंबर को। एंड अगर जेन्युइन रेंट का ट्रांजेक्शन है, डेवलपर टेक शॉप ऑन रेंट फॉर ऑफिस पर्पस, इन दिस केस आरसीएम इज अप्लीकेबल बिकॉज जेन्युइन ट्रांजेक्शन रेंट का हुआ। बट जो यहाँ पर रेंट का जो कंपनसेशन के तौर पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पे जीएसटी आरसीएम में नहीं लगेगा, और जो भी कैश पोर्शन होगा उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी है वो इनकन्वीनियंस, हार्डशिप, कॉर्पस फंड, शिफ्टिंग चार्ज, ये जो भी है वो सब पे एक तरह से उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम पहले ही डिसाइड करके उस पर 1% और 5% जीएसटी पे कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ डेट रीजन यहाँ पे आरसीएम में फिर वापस जीएसटी बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका रियल इस्टेट रेसिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हुआ तो आपको वो आईटीसी भी नहीं मिलेगी। तो अभी यहाँ पर हमारा जीएसटी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। सो नाउ वी विल गो फॉर इनकम टैक्स पोर्शन ऑन रीडेवलपमेंट कि कैपिटल गेन किसको लगेगा, डेवलपर की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, एग्जिस्टिंग मेंबर को कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा, वो सब पे। सो हम जो भी इनकम टैक्स और कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन नॉर्मली अप्लीकेबल टू द एग्जिस्टिंग मेंबर because existing member give his old flat to the developer and developer provide him the new constructed flat. So capital gain portion जो है वो existing member को लगेगा, but for the developer जो रीडेवलप कर रहा है सोसाइटी को, उसमें जो भी डेवलपमेंट जो भी डेवलपर का इनकम टैक्स होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के तौर पर होगा, बिकॉज डेवलपर की जो ट्रांजेक्शन है वो उसके रेगुलर ट्रांजेक्शन, क्योंकि डेवलपर का नॉर्मल काम जो होता है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। सो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होगी जो भी होगा वो डेवलपर का नॉर्मल है, तो वो बिजनेस इनकम में उसको टैक्स होगा, ना कि कैपिटल गेन में। बट फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर इट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। सो डेवलपर की इनकम इसमें क्या होगी, सो डेवलपर इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल न्यू फ्लैट्स, डेवलपर जो है वो न्यू फ्लैट सेल करेगा, और वो जो न्यू फ्लैट्स की इनकम होगी वो उसको चार्ज होगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा उसका अंडर सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी इन्वेंट्री, जो भी अनसोल्ड यूनिट पड़ी होगी वो गिनी जाएगी इन्वेंट्री, ना कि उसको गिना जाएगा कैपिटल एसेट, बिकॉज डेवलपर के लिए ये एक इन्वेंट्री हुई, क्योंकि डेवलपर का जो नॉर्मल सेल होता है वो ये फ्लैट सेल करना ही होता है। डेवलपर के लिए डिडक्टिबल जो कॉस्ट होगा उसमें होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स, बिकॉज डेवलपर जो है एग्जिस्टिंग फ्लैट भी कंस्ट्रक्ट करेगा एंड न्यू फ्लैट भी कंस्ट्रक्ट करेगा। सो ओवरऑल कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगा वो डेवलपर के लिए कॉस्ट होगा और उसको अलाउ मिलेगा एज अ बिजनेस एक्सपेंस। फ्लैट गिवन टू द एग्जिस्टिंग मेंबर इज डीम्ड कॉस्ट, फ्लैट गिवन टू एग्जिस्टिंग मेंबर इज डीम्ड कॉस्ट मींस कि जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर को जो भी फ्लैट जाएगा उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगा वो डेवलपर के लिए जो एक्सपेंस होगा उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो उसके लिए टीडीआर इज इक्वल टू टीडीआर होगा, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग फ्लैट जो 30 मान लो कि 30 फ्लैट एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहा है, टोटल 50 फ्लैट में थे, तो 30 फ्लैट की जो मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी टीडीआर वैल्यू होगी। सो कॉस्ट ऑफ टीडीआर received from society's newly constructed flat given to the existing member. So cost of land, cost of development right means TDR is equal to the new constructed flat given to the existing member. And for the revenue recognition in for the developer point of view, revenue recognition done by two method. One is project completion method, second is percentage completion method.
which we have discussed earlier. So in project completion method, revenue is recognized at the end of the year, and for the percentage completion method, in each year, developer have to evaluate ki how many percentage construction work is completed. So percentage completion method में जितना भी परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनकम बुक करेंगे डेवलपर। और इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड डेवलपर चेक करेगा कि टोटल यानी किस ईयर में व्यू आया है और उस साल ही वो इनकम बुक करेगा। अगर न्यू मेंबर जो फ्लैट परचेस कर रहे हैं, अगर उसके फ्लैट की वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपीज है, इन दिस केस TDS applicable under section 194 IA 1%. अगर consideration is less than 50 lakh rupees, in this case TDS is not applicable. But if consideration is greater than 50 lakh rupees or is equal to 50 lakh rupees, so TDS is applicable in this case. तो अभी हमने जो डेवलपर का टैक्सेशन समझा, अब जो मेंबर को टैक्सेशन अप्लीकेबल होगा वो कैपिटल गेन होगा। डेवलपर का जो भी सारा था वो टैक्स हुआ इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि डेवलपर का था वो बिजनेस इनकम था, टोटली कंसीडर एज अ बिजनेस इनकम, क्योंकि बिकॉज डेवलपर का जो नॉर्मल काम होता है वो कंस्ट्रक्शन का ही होता है। बट फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर कैपिटल गेन इज देयर बिकॉज existing member provide old flat to the developer and get new flat in exchange of old flat. So अगर old flat जो existing member है वो old flat 24 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं और नॉन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, मीन्स कि अगर एग्जिस्टिंग मेंबर जो फ्लैट है वो सेल करके एग्जिट हो जा रहे हैं अपना कंसिडरेशन लेके, मीन्स पैसे लेके वो चली जा रहे हैं, इन दिस केस जो भी टैक्सेबल इवेंट होगा वो जो डेट ऑफ डीड होगा, सेल डीड की जो डेट होगी वो होगा, और जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर वो होल्ड करता है 23 जुलाई 24 से पहले, तो इन दिस केस उसके पास दो ऑप्शन है, वो विदाउट इंडेक्सेशन भी जा सकता है और विथ इंडेक्सेशन भी जा सकता है। और अगर वो लेस देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और वो उसमें अप्लीकेबल स्लैब रेट जो भी आएगा 10%, 20%, 20%, 30%, उसमें टैक्स अप्लीकेबल होगा। बट हियर इज नॉन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मीन्स कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं हो रहा है डेवलपर एंड एग्जिस्टिंग मेंबर के बीच में, मीन्स कि एग्जिस्टिंग मेंबर सेल आउट कर दे रहे हैं और इस ट्रांजेक्शन से बाहर निकल जा रहे हैं। सो वहां पर जो टैक्सेबल इवेंट होगा जब सेल डेट एग्जीक्यूट होगी उस समय ही वो टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा। बट अभी हमारे केस में जैसे कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, मीन्स इंडिविजुअल HUF एंटर रजिस्टर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद द सोसाइटी विद द डेवलपर, इन दिस केस टैक्सेबल कब होगा, जब वी डेवलपर रिसीव व्यू परमिशन एंड द वैल्यू इज इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ न्यू फ्लैट ऑन द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी डेट, और जो भी अगर उन्हें कोई कैश कंपोनेंट मिला हुआ है रिलेटेड टू द फ्लैट, सो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और जो भी suppose we receive 50 lakh rupees flat, market value of the flat is 50 lakh rupees, and give 5 lakh rupees additional received which is related to the new flat. So the total consideration which is received by the existing member is equal to 55 lakh rupees, and the old old units value is suppose 30 lakh rupees, so the gain is 25 lakh rupees. And here is two option available with the existing member, 20 on 25 lakh rupees existing member pay tax at the rate of 12.5% without indexation, or they can take benefit of indexation and pay tax at the rate of 20%. Both benefit is available with existing member.
any case allowances which is related lump sum with related to the flat, जो अपने केस में जो 5 लाख रुपीस जो हमने केस रिसीव किया हुआ था वो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑलरेडी बता दिया। तो यही बात हो रही है कि केस रिसीव फॉर हार्डशिप अलाउंसेस और लम्प सम फॉर द फ्लैट वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। बट जो मंथली रेंट जो मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग मेंबर को मंथली रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा उसको हाउस प्रॉपर्टी में। और जो भी लम सम हार्डशिप अलाउंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लैट, जो उसको वन टाइम हार्डशिप मिल रही है, हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है, वो एग्जिस्टिंग मेंबर को टैक्स होगा अदर सोर्स में। मीन्स की जो भी अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है डेवलपर और एग्जिस्टिंग मेंबर के बीच में जो रिलेटेड टू फ्लैट है तो उसको कैपिटल गेन में टैक्स करेंगे। अगर वो रिलेटेड टू फ्लैट नहीं है तो उसको अदर सोर्स में टैक्स करेंगे। बट अगर जो उसको मंथली रेंट का कंपनसेशन मिल रहा है रेंट का, वो उसके लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनका हाउस प्रॉपर्टी। सो जो भी अभी हम प्रीवियस जो एग्जांपल था वही कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज कि 30 लाख रुपीस का जो फ्लैट था और 55 लाख रुपीस हमारा कंसिडरेशन था, तो 25 लाख रुपीस का हमारा गेन आ रहा था। बट 25 लाख रुपीस गेन हमें जो केस मिला हुआ है वो 5 लाख रुपीस ही केस मिला हुआ है। बैलेंस जो 50 लाख रुपीस है वो इन द फॉर्म ऑफ हाउस है। सो हम उसको 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे ओल्ड फ्लैट सेल किया है और हमें जो रिसीव हुआ है नया फ्लैट हुआ है, ना कि मॉनेटरी कुछ रिसीव हुआ है। मॉनेटरी में सिर्फ 5 लाख रुपीस मिले हुए हैं। तो जो भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जो भी हमें न्यू फ्लैट मिला हुआ है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसका हमें एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो बट फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, जो हमारी ओरिजिनल एसेट है वो लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए। मींस लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए प्लस रेसिडेंशियल हाउस को जो होल्ड करने का पीरियड है लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, हमें वो प्रॉपर्टी मोर देन 2 ईयर हमको हेल्ड करनी चाहिए, हम उसको मालिक होने चाहिए मोर देन 24 मंथ्स के लिए। और जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो इंडिया में होनी चाहिए। और जो परचेज विंडो है 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर मिलता है हमें। तो जो भी हमें न्यू हाउस मिला हुआ है 50 लाख रुपीस वैल्यू का, वो हम उसका एग्जम्पशन 54 में क्लेम कर सकते हैं। सो इन दिस केस हमारा जो भी टैक्स आएगा बंदे को इनकम टैक्स में वो नील हो जाएगा, बिकॉज हमें जो भी मिला हुआ है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन वो हाउस के फॉर्म में है। हमने एक हाउस सेल किया और दूसरा हाउस सामने हमें मिल गया है। तो इन दिस केस जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो सामने एग्जम्प्ट हो जाएगा और हम एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं उसका 54 में। कॉस्ट ऑफ जो न्यू फ्लैट होगी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ ओसी। इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें मिल सकता है अगर हम उसको क्लेम करना चाहे। मींस कि हमारी प्रॉपर्टी हमने होल्ड की हुई बिफोर 23 जुलाई 24 और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं जो भी बेनिफिशियल होगा। विथ इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% एंड 20%, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। सो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में 30-40 मेंबर होते हैं और सबके एडवाइजर अलग अलग होते हैं। तो उसमें काफी सारे लोग इस पे ध्यान देते हैं और काफी सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अ, अब हमारा कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर है जिसपे हम जीएसटी प्लस इनकम टैक्स दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में। सो अभी तक हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसका एक चार्ट में समरी है ये। लाइक कि सेल टू एग्जिस्टिंग मेंबर इन दिस केस जीएसटी अप्लीकेबल 5% और 12%, वट एवर पोर्शन, वट एवर अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल जो भी होगा उसके बेस पर लगेगा। और इसमें जो एग्जिस्टिंग मेंबर का जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा कैपिटल गेन में। सेकेंड इज सेल टू न्यू मेंबर।
सो उसमें जीएसटी 1%, 5%, 12% जो भी होगा वो अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उसके बेस पर लगेगा। और डेवलपर के लिए वो होगा, वो बिजनेस इनकम होगा। टीडीआर और डेवलपमेंट राइट्स 18% आरसीएम अप्लीकेबल होगा। बट डेवलपर जो एग्जिस्टिंग मेंबर का जो जीएसटी पे कर रहा है वो ऑलरेडी टीडीआर के बिहाफ पर ही है। सो इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो टीडीआर का आरसीएम है वो डेवलपर ही जो एग्जिस्टिंग मेंबर का जीएसटी पे कर रहा है वो सेम ही वैल्यू आती है। और जो भी टीडीआर की वैल्यू होगी और जो भी उसका आरसीएम होगा वो उसको बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम कर सकता है डेवलपर। ट्रांजिशन रेंट अलाउंट पेड बाय द डेवलपर, वो हमने जैसा डिस्कस किया वो एज अ उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर वो कंपनसेशन फॉर्म में है तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी जेन्युइन ट्रांजेक्शन है रेंट का तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। फिर हार्डशिप अलाउंस और रिहेबिलिटेशन अलाउंस, जो अगर हमें वो उसको जीएसटी में जीएसटी उस पर नहीं लगेगा बिकॉज वो हार्डशिप अलाउंसेस है, वो किसी भी तरह का यानी टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक कंपनसेशन के नेचर में ही है। सेम एज रेंट एंड हार्डशिप अलाउंस, वो दोनों अगर कंपनसेशन के फॉर्म में होगा तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और दोनों बिजनेस एक्सपेंस अलाउ होगा डेवलपर के लिए। आईटीसी हमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ही कॉमर्शियल पोर्शन के लिए मिलेगा। बट जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो होगा उसमें जो भी हमारा रेसिडेंस पोर्शन होगा, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। और जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल पोर्शन पे हमको आईटीसी मिल जाएगी, बट उसका जीएसटी रेट रहेगा 12%। और जो भी आईटीसी हम रिवर्स करेंगे वो इनकम टैक्स में हमें एज ए एक्सपेंस क्लेम करेंगे। और आफ्टर ड्यू अगर हम सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। और एग्जिस्टिंग मेंबर जो होगा वो अगर उसका लॉन्ग टर्म एसेट है तो वो उस पे 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। और अगर वो प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर सेल कर देवे, उसने 54 का एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ है और न्यू यूनिट उसको मिला हुआ है डेवलपर की तरफ से, बट विद इन 3 ईयर ऑफ पोजीशन, मीन्स कि जब ड्यू आ गया वो विद इन 3 ईयर उसको सेल कर देता है, तो जो भी एग्जेम्पशन उसने 54 में क्लेम किया होगा वो विड्रॉ हो जाएगा और उस पर जिस ईयर उसने सेल किया होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। सो आज जो जीएसटी हमने सीखा है कि हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग पिछले 1 आवर में बिल्ड की है कि भाई जीएसटी स्कीम में कौन सा जाना है, बिकॉज कि प्लान पासिंग के पहले ही हमें डिसाइड करना है कि भाई कॉमर्शियल पोर्शन कितना होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, किसमें क्या किसमें होगा, तो हमें रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में डाला जाना है या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जाना है, बेस्ड ऑन विच जीएसटी रेट डिसाइड होगा। फिर आरसीएम जो अप्लीकेबल है टीडीआर पे, रेंट पे, वो हमें प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन कंपनसेशन फॉर्म के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स आप जो एग्जिस्टिंग मेंबर के पास में साथ में जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं अगर उसमें वो कंपनसेशन नेटसन और प्रॉपर वर्डिंग नहीं है तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको 18% आरसीएम भरना पड़ सकता है इन दिस केस। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मेंबर न्यू फ्लैट, थर्ड पॉइंट है, मेंबर जो भी न्यू फ्लैट उसको मिला हुआ है उस पे वो कैपिटल गेन डिस्क्लोज करना होगा इन द ईयर ऑफ ओसी। जो भी वो व्यू उसको डेवलपर को मिलेगा उस ईयर में उसको कैपिटल गेन एग्जिस्टिंग मेंबर को दिखाना पड़ेगा। फिर जो भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो भी ये सेक्शन 45A और सेक्शन 54, वो तो हमारा जो हुआ कि एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए जो भी एग्जेम्पशन जो हमें मिलता है, और 50 सेक्शन 45 इज कैपिटल गेन एंड सेक्शन 54 इज फॉर एग्जेम्पशन। जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर को फ्लैट मिले हैं उसके लिए ये अप्लीकेबल है। 194 इज जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है उसमें जो भी मॉनेटरी पोर्शन होता है, मॉनेटरी पोर्शन पे जो टीडीएस अप्लीकेबल होता है वो 10% होता है। अगर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो 30% डिसअलाउ होगा।
और उसे डिफॉल्ट मानेंगे तो और उसका जो भी पोर्शन होगा उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में। और जो रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस है कंपनसेशन फॉर्म में है उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा उसके लिए। और जो भी वर्डिंग होगी, जो भी एग्रीमेंट होंगे आपके, उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। सो आप जो भी आरसीएम का 18% जीएसटी होगा उससे आप बच सकते हैं। तो रवि भाई, ओवर टू यू। Yeah, thanks, Sunil. Bye. The forum is open for questions. Feel free to ask. Any questions from anybody? Okay, so I think no questions. Thank you so much, Sunil Bhai, for the insightful sessions, and thanks to the wonderful audience for the participation. Thank you, everyone. Thank you.